Hello everybody, my name is Rahul. So as I discussed in the last session, now we are going to start the first session of programming language. So let's start with the C programming. So as I told you, the roadmap for the programming language and software development. So in software development roadmap, as I said last time, there are different programming languages. ठीक है. So here as I said, तो सबसे पहले in the roadmap here is a C programming language, which is a basic programming language developed in 1972. Okay, so this is a very important programming language, and based on this language other programming languages are developed. So C programming language was developed by Dennis Ritchie. Here is the C programming language in the roadmap. So these are the steps here. In the steps you will understand here, C is the first language here. After C, in the flow you should learn C++. Then after this you should learn the Java programming. So this is the way you have to go ahead one by one. Okay, so now from this diagram we are going to start with the first language, that is the C programming language. So in my last section I already discussed about the roadmap and why we should learn programming language. Ultimately goal is that we have to develop a different softwares over here, and to develop these softwares we need to follow one by one programming languages. So there are different full stack technologies that I already discussed in the previous session. So here the agenda is the focus on only C programming language. So let's start. To start the C programming language, so as I said, we are now discussing Hindi, Marathi, English. So same thing, programs or software required one programming language. So C is the first programming language. So programming language is like other languages only that language has their own syntax and structure. Same thing, when we are discussing in English, we need to follow the grammar, sentence and words, nouns. Same thing, the language has their own grammar, sentence, words and nouns that we need to understand. ओके तो अभी जो भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे C++ में और जावा में कॉमन रहेंगे. सिर्फ यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे और भी ज़्यादा कंसेप्ट ऐड हो जाएंगे. इस तरीके से हम लोग सीखते हैं. तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने अभी सी प्रोग्रामिंग शुरू किया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर लर्निंग सम पार्ट ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सी का पहला प्रोग्राम शुरू करना है. तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट IDE और हमारे पास अलग अलग एडिटर्स होते हैं. तो अभी मेरे पास एक एडिटर है मेरे लैपटॉप के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं डेव C++. वैसे ही तुम लोग विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो और बाकी कोड ब्लॉक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो. सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड कंफर्ट लेवल यू कैन सिलेक्ट द IDE. Right now I am selecting a dev C++. In next lecture I will show you the Visual Studio also. तो तुम्हें सारे एडिटर के साथ तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हियर विद dev C++. तो ये होता है मेरा एडिटर dev C++. हर एडिटर के कुछ ना कुछ कॉमन ऑप्शंस होते हैं. तो एडिटर के बारे में समझने के लिए देखो, यहाँ पे मैंने फाइल पे क्लिक किया. ओके, फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू पे आ जाओ and select a Java project. Sorry, here is the like your project, first project. तो कोई भी एप्लीकेशन जब हम करेंगे उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट बोलते हैं. सो क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट हियर, कंसोल एप्लीकेशन. तो अभी कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं. अगर हम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके अंदर वेब एप्लीकेशंस होते हैं. वैसे एक एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. अब ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है, वेट आई विल शो यू द आंसर हियर, वन सेकेंड. तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करो, सी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे एप्लीकेशन 1. तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन रहेगा. यहाँ पे रिमेंबर दिस, आई हैव सिलेक्टेड कंसोल एप्लीकेशन, सी प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन 1. इफ़ यू वांट आई विल रिपीट हियर, जस्ट कैंसल दिस, गो टू फाइल, सिलेक्ट द न्यू एंड अ प्रोजेक्ट हियर. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद तुम लोगों को सिलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन, सी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन 1. तो अभी इस एप्लीकेशन के लिए क्लिक ऑन ओके. अभी इसको एक जगह पे सेव करना पड़ेगा. जो भी प्रोग्राम करोगे उसको एक लोकेशन पे सेव करो. लेट्स आई क्रिएट अ वन फोल्डर इन माय डी ड्राइव.
तो यहाँ पे अभी हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सी बैच। तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, इसको अभी हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ये देखो एक फ़ोल्डर बना दो, इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर दो। अभी तुम्हारा जो प्रोग्राम रहेगा एप्लीकेशन 1 नाम से इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। आई विल रिपीट, इफ़ यू वांट गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन से। यहाँ पे हम लेंगे एप्लीकेशन 1, यहाँ पे एप्लीकेशन 1 क्लिक ऑन ओके। तो ये एक लोकेशन पूछेगा, जैसे मैंने बोला हमारे मशीन पे एक फ़ोल्डर बना लो डी ड्राइव में, जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन सी बैच 1। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे। इस फोल्डर में इसको सेव करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ पे। तो ये होता है तुम्हारे सामने जो भी कुछ दिख रहा है इसको बोलते हैं कोड, इसको बोलते हैं कोड। अभी ये कोड कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या पर्पज़ है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट ये लॉन्चिंग कोड हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया हमारे एडिटर की वजह से, क्योंकि एडिटर हमें एक स्टार्ट करके देता है। वो बोलता है कि तुम लोग जो मैंने लिखा है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करो, बिकॉज कोडिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील बट कोडिंग विद डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हियर। तो इन लोगों ने हमें कुछ डिसिप्लिन दिया है इनिशियली, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा जाता है चीज़ें, ये वाला इस सेक्शन को बोला जाता है हिडर फाइल्स। इस सेक्शन को बोला जाता है हिडर फाइल्स। रिमेंबर दिस, द वर्ड ओनली। एज आई सेड, प्रोग्रामिंग के अपने खुद के कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, तो ये वर्ड्स को याद रखो। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में हम इसको हिडर फाइल्स बोलेंगे, तो जावा में इसको अलग वर्ड रहेगा, पाइथन में इसको अलग वर्ड रहेगा। हर एक लैंग्वेज में उसके अपने अपने वर्ड्स होते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा गया है स्टार में, स्लैश स्टार में, इस लाइन को बोला जाता है कमेंट लाइन। तो इस कमेंट लाइन का यूज़ होता है कि मेरा प्रोग्राम किसके बारे में है, क्या चीज़ का प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट आई कैन राइट इनसाइड दिस लाइन। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, ये मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सेव नहीं हुआ था प्रोग्राम, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट सेव किया है एप्लीकेशन 1 नाम का। तो मैं app1.c नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। .c इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर कि सी का प्रोग्राम .c से ही सेव करोगे, तभी उसके कंपाइलर को वो समझ में आएगा कि इस फाइल को मुझे कंपाइल करना है। तो कंपाइलर क्या है वो भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे ना। राइट नाउ रिमेंबर, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रोग्राम एप्लीकेशन 1.c। इसको हम सेव कर देंगे इस फोल्डर के अंदर, सेव हियर। ओके, माय प्रोग्राम इज सेव इन दिस फोल्डर, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अभी क्या करना है, इंटीजर मेन, ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, डोंट वरी। पहले प्रोग्राम में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसको बोलोगे हिडर फाइल, इसको बोलते कमेंट, इसको बोलते मेन फंक्शन, दिस इज द एंट्री पॉइंट, इसको बोलते कमेंट। ये भी होता है कमेंट। कमेंट मतलब क्या, जैसे हम लोग नोटबुक में कुछ हाईलाइट करके लिखते हैं पेन से, कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, वैसे ही इस लाइन का मतलब मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, एंट्री पॉइंट। तो कभी भी प्रोग्राम शुरू होता है वो मेन मेथड से ही शुरू होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, विदाउट मेन मेथड यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रोग्राम। जैसे हर घर को एक मेन डोर होता है, वैसे हर प्रोग्राम को एक मेन एंट्री पॉइंट होता है। तो राइट नाउ आई हैव अ एंट्री पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज मेन फंक्शन। तो जब पहला प्रोग्राम करोगे तब इन चीज़ों को एज इट इज़ लिख के रखो, धीरे धीरे समझ में आएगा हर एक का रोल। सो डोंट थिंक मच अबाउट दिस लाइन कि ये इंट क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग टॉपिक होता है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मेन के अंदर हमारा जो कोड होता है, जो हमें एक्चुअल काम करना है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे तुम्हें मैसेज प्रिंट करके दिखाना है। स्टार्टिंग में इफ़ यू रिमेंबर मैंने कंसोल एप्लीकेशन लिया था, तो वो कंसोल का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें आउटपुट में, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो ये जो लाइन मैंने लिखा है ना, ये वाला लाइन, ये मुझे कंसोल पे मिलने वाला है। अब ये कंसोल किधर है, रुको बताता हूँ मैं। पहले ये प्रिंटफ से क्या किया हम लोगों ने, इसको बोलोगे फंक्शन। तो तुम बोलोगे सर ये फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या, हर चीज़ में कोई ना कोई इनबिल्ट फंक्शन होता है। तुम्हारे पास लैपटॉप है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फंक्शंस है। तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके अंदर अपने खुद के फंक्शन है। तो सी लैंग्वेज भी एक टाइप का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का ये यूज़फुल फंक्शन है।
ये अगर तुम्हें मोबाइल चलाना सीखना है तो उसके फंक्शन सीखने पड़ेंगे, वैसे तुम्हें सी प्रोग्रामिंग चलाना सीखना है तो उसके फंक्शन सीखने पड़ेंगे। तो मेरा प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि प्रिंटिंग का काम कर रहा है मेरे लिए। कहाँ पे प्रिंट होता है वो दिखाता हूँ मैं। तुमने जो भी लिखा है वो सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक कंपाइलर होता है। तुमने जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कंपाइलर होता है। लुक एट द कंपाइलर हियर। तो ये कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर मतलब क्या, जैसे कॉलेज में या स्कूल में हम लोग पेपर लिखते हैं और हमारे टीचर उसको चेक करते हैं कि हमने सही लिखा या गलत लिखा है, तो वैसे ही तुमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को चेक करने वाला ये कंपाइलर होता है। लाइक अ टीचर जो इसको चेक करेगा कि तुमने सही लिखा या नहीं लिखा। चलो मैं इसमें थोड़ी गलती करता हूँ। पहले यहाँ से एक लाइन निकाल दिया मैंने और इसको बोलता हूँ कि चेक करो। इसने चेक करके बोला अरे देयर इज कुछ तो सम एरर इज देयर। ये रेड कलर में क्रॉस आ गया। तुम बोलोगे एरर तो इधर था, यहाँ पे एरर क्यों आया? क्योंकि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे सेमीकोलन के साथ ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए बोला गया कि एवरी लाइन शुड एंड विद द सेमीकोलन। तो उसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो के इधर ख़त्म हो गया, इसलिए उसने एरर यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये लाइन के बाद सेमीकोलन होना चाहिए था, ये एक एरर था। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं। यस, नाउ कंपाइल सक्सेसफुली, नो एरर। लेट्स रन द एप्लीकेशन। यहाँ पे रन करके एक ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन दिस। ये आ गया तुम्हारा आउटपुट, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो ये मेरे पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, वेलकम टू सी। तो तुम बोलोगे ये जो आउटपुट कहाँ पे आ रहा है? ये आउटपुट जिस जगह पे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट किया था। तो ये मेरा कंसोल है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो भी दिखेगा ये कैरेक्टर फॉर्मेट में आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो सी प्रोग्रामिंग में हम जो भी काम करेंगे वो कंसोल पे ही दिखेगा, इसलिए इसको कंसोल एप्लीकेशन के साथ सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेन फंक्शन है इसने ये लाइन को प्रिंट करवा दिया। और ये मेन फंक्शन किसने दिया? ये मेन फंक्शन हमें दिया है ये वाले फाइल ने। इस फाइल को बोलते हैं हीडर फाइल। ये फाइल का काम होता है, इस फाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे यूज़फुल फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटफ के जैसे और भी कुछ फंक्शन है जो हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसे स्कैनफ नाम का एक फंक्शन आएगा, वैसे ही आगे जाके गेटसी नाम का फंक्शन आएगा, वैसे ही आगे जाके पुटसी नाम का फंक्शन आएगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी ये यहाँ पे स्कैनफ होता है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दे थोड़ी देर के लिए। बट इस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बुक शेल्फ होता है, उस बुक शेल्फ के अंदर अलग अलग बुक्स होते हैं। वैसे ये मेरा एक बुक शेल्फ है, उसके अंदर ये अलग अलग टाइप के बुक्स है, प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से तुम इसको याद रखो। फिलहाल ये मेरा एक फंक्शन है जो मुझे इस फाइल ने दिया। इस फाइल से कोई भी फंक्शन मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सेव कर लो जो भी चेंजेस करोगे, एक बार फिर से कंपाइल करके चेक कर लो। ओके, कंपाइलर रन किया तो भी चलेगा। क्लिक ऑन दिस, ये आ गया आउटपुट। इसके साथ में और एक लाइन ऐड करता हूँ, प्रिंटफ वेलकम टू लिंक कोड। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ JM रोड पुणे। तो ये 3 लाइन का कोड यहाँ पे आ गया। इसको फिर से एक बार कंपाइल करो, रन करके चेक करो, वेलकम टू सी, वेलकम टू लिंक कोड JM रोड पुणे। बट देखो, कोई भी चीज़ हम जब लेते, कोई मोबाइल लो, कोई शूज़ लो, कोई ड्रेस लो या लैपटॉप लो, कुछ भी लो, तो हम उसका लुक एंड फील देखते हैं। तो जब मैं किसी को ये प्रोजेक्ट देने वाला हूँ तो वो ये आउटपुट को देखने वाला है, वो कोड को नहीं देखेगा। मेरा क्लाइंट जो रहेगा वो मेरे आउटपुट को देखने वाला है। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटपुट बहुत कंफ्यूजिंग है, एक लाइन में सब कुछ आ रहा है। दिस इज़ नॉट द गुड वे ऑफ कोडिंग राइट नाउ। तो इसको बंद कर दो और यहाँ पे उसको ठीक से करने के लिए इधर न्यू लाइन लिखेंगे, इसको बोलते हैं न्यू लाइन। स्लैश लिखना है और n लिखना है, जो कि तुम्हारे आउटपुट को नए लाइन पे लेके जाएगा। चेक कर लो एक बार फिर से, ये देखो सब कुछ नए लाइन पे आ गया ये। अब इसको और भी अच्छा अगर प्रिंट करना है तो तुम इसको एक काम करो, /t दे दो, /t दे दो, /t दे दो। ये /t से क्या होता है तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रन करता हूँ, देखो
पहले वाले आउटपुट में इस आउटपुट में क्या डिफरेंस आ गया, पहला आउटपुट इधर शुरू हुआ था, ये आउटपुट थोड़ा आगे जाके शुरू हो गया, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया, तो /t ये स्पेस प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो कभी भी आउटपुट ये हमेशा अच्छी तरीके से प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ इसको डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, इसका वैसे अभी कोई यूज़ नहीं है, बट ओनली फॉर इससे एक प्रोफेशनलिज्म समझ में आता है कि तुम कोड कितना अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। देख लो एक बार, ओके देखो, दिस इज़ द वे आई हैव प्रिंट माई आउटपुट हियर, लुक एट दिस। जो भी प्रिंटफ में लिखा है वो सारा प्रिंट हो गया, /n/t वगैरह प्रिंट नहीं होगा, वो अपना काम कर रहा है, /n तुम्हारे आउटपुट को न्यू लाइन पे ले रहा है, /t उसको आगे लेके जा रहा है। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम सी का। तो इसमें अभी तक हमने क्या सीखा, हाउ टू टेक द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल कैसे लेना है, उसको सेव कैसे करना है, और बेसिक प्रोग्राम कैसे टाइप करना है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला प्रोग्राम कंप्लीट किया, जिसके थ्रू तुम्हें समझ में आया कि प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट कैसे लेना है, फाइल को कैसे लेना है, और उसको सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तुम्हें डेवसी इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, ठीक है, या विजुअल स्टूडियो भी कर सकते हैं। मैं कुछ डेमो तुम्हें विजुअल स्टूडियो से भी दिखा दूंगा, कुछ डेमो डेवसी से कर लो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन यूज़ एनी एडिटर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ अगर एरर रहेगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा या कुछ डाउट रहेगा, तो प्लीज़ जी मैसेज बॉक्स में टाइप कर दो, वट एवर द मैसेज और डाउट यू हैव, ओके, विल ट्राई टू सॉल्व दैट एरर्स ऑल्सो, ओके, और मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच।